Hello everyone, welcome back to my channel. In this series we are discussing the previous HTET exams, and in today's video we are going to discuss about TGT Science ऑफ 2020 जो 2020 में हमारा TGT साइंस हुआ था, हम उसको डिस्कस करेंगे. पहले वाले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया कि जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे. वी विल ओनली आई विल शेयर द फॉर्मूला एंड शेयर द कंसेप्ट. आपको उसको सॉल्व खुद करना है, क्योंकि अगर हम उसको सॉल्व करने लगे तो उसमें बहुत लंबा टाइम चला जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. क्वेश्चन नंबर 91 says that in any angiosperm, the free nuclear division take place during the formation of which of the following: gametes, flower, endosperm, or embryo? So it takes place during the formation of the endosperm. Free nuclear division takes place during the formation of the endosperm. Next is the UPSC name of the following compound: CH3CO, CH2, 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 COOH. One is carboxylic acid. One here the two functional groups are present. One is ketone. Second one is carboxylic acid. So carboxylic acid is more reactive as compared to ketone. So we will start numbering from here: 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So hexa will be present. That is incorrect, that is incorrect, that is incorrect. So 5-oxohexanoic acid will be the IUPAC name. Next question 93, that taxonomical studies based on DNA are a part of karyotaxonomy, chemotaxonomy, cytotaxonomy, alpha taxonomy. That are a part of the chemotaxonomy. The biofertilizers used in paddy fields is Azolla, Bacillus thuringiensis, Rhizobium, or Thermus aquaticus. So the biofertilizers that is used in the paddy fields, that is Azolla, that help in the fixing of the nitrogen fixation, that help in the nitrogen fixation. Neoprene, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है. नियोप्रीन इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग: 2-chloro 1,3-butadiene, 2-methyl 1,3-butadiene, 1,3-butadiene, acrylonitrile. So correct option for 95 will be the option number 1, 2-chloro 1,3-butadiene polymerized to form the neoprene. 96, how many different kind of gametes will be produced by the plant having a genotype? This capital A, capital B, small b, capital C, small c. So सिर्फ एक ही जो जीन है that is present into the heterozygous condition. 2 raised to power n. n is the number of heterozygote genes. यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ एक होगा. Then 2 different type of gamete will be formed. 96 का क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4. The electromagnetic waves are transverse in nature is evidented by reflection, polarization, inference and diffraction. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं वो ट्रांसवर्स नेचर की हैं. इसको किसने एविडेंस किया था? दैट इज वाज डन बाय द पोलराइजेशन प्रोसेस. फॉर द रिएक्शन N2 गैस प्लस 3H2, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, G इज इक्वल्स टू 2NH3 एंड डेल्टा H इज नेगेटिव. दैट इज कौन सी इसकी इक्वेशन होगी जो इसको रिप्रेजेंट करेगी? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा हमारे पास में? N इज इक्वल्स टू डेल्टा N इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है? 2. दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 2 माइनस 3, सॉरी, डेल्टा N इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3, यहाँ पे कितने हैं? +1. 2 माइनस 4, that is -2. So RT raised will be raised with the power -2. So correct option for question 98 will be option number 1. Question 99 का correct option क्या होगा? If a rate constant for some reaction is K is equals to this, then its order will be. हमें order find out करने के लिए हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? L raised with power n-1 mole raised with power 1 - n एंड टाइम रेज्ड विद पावर -1. सो यहाँ पे हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो इसके साथ में मैच कर रही हो. 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1, 1 - 2 इज इक्वल्स टू -1. सो हेयर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी 2. Which of the following is carbonate or of zinc? Zinc blend, calamine, zincite or sapphirite? So correct option for question 100 will be the calamine.
The structural and the structural and functional unit of life, the cell, was discovered by Robert Koch, Robert Hooke, Charles Darwin, Robert Boyle. So correct option for this is Robert Hooke. 102 says that which of the following molecules represent the type of hybridization? sp3, sp2, sp2, sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटम. मैं इसीलिए आपको बार बार बोलती हूँ कि आप जो भी क्वेश्चन आपसे दिया गया हो आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे. ये क्या पूछ रहा है कि sp3, sp2, sp2, sp हाइब्रिडाइजेशन कहाँ होगा? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे कहाँ पे होगा? सो sp यहाँ पे कौन सा sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा. SCH2 यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होगा. ये दो ऑप्शन बच गए जहाँ पे हमारे पास में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. यहाँ पे हमारे पास में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बट यहाँ पे क्या है? sp3 और यहाँ पे क्या है? सिर्फ sp हाइब्रिडाइजेशन. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 102 इज ऑप्शन नंबर 4. Number 103. Deficiency of which of the following vitamins cause pernicious anemia? Vitamin K, vitamin E, vitamin B12 and vitamin 6. So correct option for this question is vitamin B12. 104. Which of the following plant is dicot? Bamboo, banana, wheat, congress grass or pantheum? So correct option for question 104 will be option number 4, that is congress grass. 105 will be which of the following molecules have the highest dipole moment? NF3, NH3, BF3, CClO4. यहाँ पे the highest dipole moment will be of NH3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 106. 106 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फॉल्स? फाइब्रोब्लास्ट स्टोर फूड इन एडिपोज टिश्यू. इनकरेक्ट. निसल्स ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन द ग्रेनुलोसाइट्स. Incorrect. Blood platelets are formed from the macrophages. Incorrect. Serum globulin act as antibody. Correct. So which of the following is false? A, B, C are false. So correct option for this question is 106 will be option number 1. 107. 107. The horizontal range of a projectile is 4 under root 3 times of its maximum height. What will be the value of its projection? So हमें क्या पता होता है? जब हमें दिया हुआ है तो रेंज और इसको हाइट को हम इक्वल करेंगे. रेंज इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 3 हाइट. रेंज हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे 2v² साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन जी इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 3 v² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी 2g. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे वी विल फाइंड आउट फ्रॉम हेयर वी एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन एंगल. वी विल फाइंड आउट फ्रॉम द थीटा फ्रॉम हेयर. जब हम इसको कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे हमें वी की थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 108. 108 क्या कह रहा है? द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, इसकी वैल्यू है जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सेलरेशन है दैट इज 12 एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन. इट्स टाइम पीरियड विल बी then its time period is represented by time period is equals to 2 pi by time period frequency to by t. Then we will direct use alpha is equals to w y w square y. W square y will be alpha is equals to यहाँ पे कितना दिया हुआ है 12 एंड डिवाइडेड बाई y कितना टाइम कितने डिस्टेंस पे है 3 पे डिवाइडेड बाई 3 अल्फा स्क्वायर. तो w विल बी 4 अंडर रूट w विल बी 2. तो यहाँ पे हम डायरेक्टली जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे देन t इज इक्वल्स टू 2 pi by w. So t is equals to 2 pi by 2. 2 से 2 कैंसिल पावर पाई वैल्यू 3.4 दैट इज 3.4 सेकेंड. 108 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2. 109. वन हॉर्न राइनोज इज कंजर्व्ड स्पीशीज एट राजीव गांधी नेशनल पार्क, कॉर्बेट पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क. सो वन हॉर्न राइनो इज कंजर्व्ड स्पीशीज ऑफ कांजीरंगा नेशनल पार्क. 110. Chlorophyll is absent in lichen, alga, fungi, bryophytes. Lichen is the combination of fungi plus alga. Alga में chlorophyll present होता है, alga में chlorophyll present होता है, bryophytes में chlorophyll present होता है, fungi में chlorophyll absent होता है.
111 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। अगर कोई बेंजीन ग्रुप है और इस पे ऑलरेडी कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जो इनकमिंग मॉलिक्यूल है उसको मेटा पे डाइवर्ट करेगा, तो वो इनमें से क्या होगा? दैट इज CHO, NH2, OH, OCH3. So correct option for this question is option number 1, that is CHO. Which of the following class of arthropoda have animals with 2 pair of antenna and green gland? Crustacean, Chilopoda, इंसेक्टा, अरेक्नेडा. सो 112 के लिए क्या होगा? जो वो पेयर जो आर्थ्रोपोडा के वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें 2 पेयर ऑफ एंटीनास प्रेजेंट होंगे और एक्सक्रीशन के लिए ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होगी, वो किस में प्रेजेंट होंगे? दैट इज दे आर प्रेजेंट टू क्रस्टेशियंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 113 फूड स्टोरिंग प्लांट पार्ट इन अनियन इज रूट, स्टेम, फ्रूट और लीव्स. जो हम अनियन का प्लांट देखते हैं जिसके अंदर फूड स्टोर होता है, दैट आर द लीव्स. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 113 विल बी ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 114 मलेरिया इज कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम फीमेल एनाफ्लीज मस्कीटो, क्यूलेक्स मस्कीटो, वायरस. मस्कीटो इज ओनली द कैरियर, द मेन कोजेंट फॉर मलेरिया इज प्लाज्मोडियम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 115 के लिए क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट ट्रू? साइटोक्रोम C इज the only peripheral member of ATS. Succinate dehydrogenase is the membrane bound enzyme of Krebs cycle. ATP is synthesized towards pre-mitochondrial space inside ATP synthetase. Net gain of ATP is 2 in glycolysis. हमें ये बताना है which of the following statement is not correct. So ATP is synthesized towards pre-mitochondrial space side by ATP synthetase is not true out of these. 116 if Henle's loop were absent from the mammalian nephron, which of the following statement is expected? The urine will be more concentrated, the urine will be more diluted, there will be no urine formation, there will be hardly any change in the quantity and quality of the urine. ये हम पूछ रहे हैं जो हमारी नेफ्रॉन्स होती है उसमें ग्लोमेरुलस से, और जब हमारे PCT से होता है वो लूप ऑफ हेनले में जाता है, देन DCT एंड देन कलेक्टिंग डक्ट्स में हमारा जाता है. तो जो लूप ऑफ हेनले है इसका क्या काम होता है? लूप ऑफ हेनले इज यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन. सो अगर लूप ऑफ हेनले नहीं होगी तो यूरिन विल बी more diluted. 117 the rice water turns blue black on addition of few drops of iodine solution that indicates. iodine solution है, iodine solution को हम इंडिकेटर सिर्फ एक फॉर्म में यूज़ करते हैं फॉर द स्टार्च. तो अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा तो वो जो आयोडीन सोल्यूशन है दैट विल जो राइस वाटर है दैट विल टर्न ब्लू ब्लैक विद आयोडीन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 118 में ये क्या पूछ रहा है? द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ अ टोमेटो सेल इज क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल. सो ओनली सेल वॉल इज द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ अ टोमेटो सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 119 में ये क्या पूछ रहा है? A source of sound frequency 16 Hz is placed inside water. The speed of sound in water is 500 meter per second and its air is 300 meter per second. The frequency of sound recorded by an observer in air will be that will be same, that is 600 Hz. क्योंकि जो साउंड की फ्रिक्वेंसी है दैट डजंट डिपेंड अपॉन द मीडिया कि वो किस मीडिया में ट्रैवल करिए, वो उस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द सोर्स. तो अगर सोर्स की साउंड फ्रिक्वेंसी 600 हर्ट्ज़ है तो वो चाहे हम किसी मीडिया में भी ऑब्जर्व करें दैट विल बी सेम. चाहे हम उसे पानी में, चाहे ग्लास में, चाहे एयर में, कहीं पे भी हम उसको ऑब्जर्व करेंगे दैट विल बी सेम. Next question is 120. Negative geotropic roots of a mangrove plants are coleroids root, assimilatory roots, hygroscopic roots और nematophores. So negative geotropic अगर कोई ground से वो बाहर आ रही है that are negative geotropic roots and that are nematophores. Next question is 121. 121 क्या कह रहा है? 121 कह रहा है कि the time period of a simple pendulum on a planet is 5 seconds. ठीक है, कोई पेंडुलम है और उसका टाइम पीरियड है कि ऑन अ सिंपल पेंडुलम ऑन अ प्लैनेट इज़ 5 सेकेंड. ठीक है, एंड द इफेक्टिव लेंथ इज़ 5 मीटर्स. उसकी इफेक्टिव लेंथ है वो 5 मीटर है. दोनों ही चीज़ें 5-5 हैं. हाउ लॉन्ग शुड इट टेक टू मेक 20 ऑसिलेशन इन 30 सेकेंड्स? हाउ लॉन्ग शुड इट बी मेड? जो हमारी लेंथ है हम उसको कैसे चेंज करें, जो उसका टाइम पीरियड है
वो चेंज हो जाए। टाइम पीरियड को हमें कैसे चेंज करना है, टाइम पीरियड हमें इसका कितना करना है, पहले 5 सेकेंड है और इफेक्टिव टाइम हमें कितना लाना है, 30 सेकेंड में 20 ऑसिलेशन कर रहा है तो 1.5 सेकेंड। तो मतलब हमें उसका टाइम पीरियड डिक्रीज करना है, पहले 5 सेकेंड था, अब हमें उसका टाइम पीरियड कितना करना है, 1.5 सेकेंड। सो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट L बाई जी। हमारे पास में डायरेक्ट है, टाइम पीरियड है, लेंथ है, वी विल फाइंड आउट द जी ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेनेट। उस प्लेनेट पे उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर कितना काम कर रहा होगा, देन वी नीड टू चेंज द टाइम पीरियड टू 1.5 सेकेंड। तो हम इसमें से जी की वैल्यू फाइंड आउट करके दोबारा इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे एंड वी विल फाइंड आउट आर आंसर कि वो कितना टाइम कितना लंबा हमें उसे और इंक्रीज करना पड़ेगा। Next question is 122. Which of the following pair has same bond order? Same bond order इनमें से किस किस कंपाउंड का होगा, N2C2 Cl2 O2 2 positive F2 CO positive and CO O2 and N2. So correct bond order out of this is NO positive and CO. Next question is 123. The element Z is equals to 120 would be placed in which of the following periodic table? Halogen family, alkaline earth metal, noble gases and alkali metals. So that should be placed in alkaline earth metals. Next question is 124. The resistivity of a conductor wire depends on length of a conductor wire, cross section area of a conductor wire, nature of the material of conductor wire and the temperature of the conductor wire. Only the temperature and the conductor of the wire. So resistivity होती है that depends upon the material of दैट जो भी उसका मेकिंग सब्सटेंस होता है उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर वायर। सो क्वेश्चन 124 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। 125 सेज दैट आर NH2 CHCl3 plus KOH when heated, heat is given, what product will be formed from the above reaction? RCl, ROH, RC and RNC. So correct option फिर इसमें क्या बनेगा, that is RNC. Which of the following is not a common component of photochemical smog? Photochemical smog में common component नहीं है, that is peroxyl acetate nitrate, O3 nitric oxide, CFC. So out of this is जो common जो photochemical smog का common component नहीं है, that are the CFCs. Next question is 127. The focal length and the magnification of a plane mirror are f infinite, m जो magnification है वो infinite, f infinite, magnification 1, f0 मैग्नीफिकेशन 1, f0 m0. सो अगर हम इसमें देखते हैं कोई भी कंपोनेंट हो गया तो उसमें जो अगर प्लेन मिरर है तो हम उसके में मान रहे हैं कि वो इन्फिनाइट बड़ा कोई मिरर है, उससे हमने कट किया है, तो जो इसकी फोकल लेंथ होगी दैट विल बी इन्फिनाइट एंड मैग्नीफिकेशन विल बी, जब हम किसी प्लेन मिरर में खुद को देखते हैं तो हमें वही साइज़ दिखता है जो हमारा साइज़ होता है, मैग्नीफिकेशन विल बी 1. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी फोकल लेंथ इन्फिनाइट एंड मैग्नीफिकेशन 1. 128. How far below the earth level will the value of gravitational acceleration will be? Half of the gravitational acceleration on the earth surface. Radius of earth is 6400 kilometers. ये पूछ रहा है कि जो हमारा अर्थ सरफेस है उसमें हम कितना नीचे जाएं, किस डेप्थ तक जाएं जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स इसका हाफ हो जाए, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे g है तो यहाँ पे g/2 हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करना है, g डैश इज इक्वल्स टू g इंटू 1 माइनस d/r, where gravitational force is g is the gravitational force on the earth surface, 1 minus d is the depth at which that change will happen, r is the radius of earth. इसको हम डायरेक्ट पुट करेंगे, we will find out कहाँ पे जाके हमारा जो कितने नीचे जाके जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हाफ हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 129. 129 क्या कह रहा है,
A convex lens of focal length 8 सेंटीमीटर is kept in contact with a concave lens. कोई convex lens है और कोई concave lens है, दोनों को साथ साथ में रख दिया है. Of focal length 10 सेंटीमीटर, एक की focal length 8 सेंटीमीटर है, एक की 10 सेंटीमीटर है. ठीक है. What will be the focal length of this combination? एक concave lens है और एक convex lens है. इन दोनों का हमने साथ में पुट कर दिया है, तो इनकी focal length का combination क्या होगा? 1/f is equals to 1/f1 plus 1/f2. 1/8 माइनस 1/10, बिकॉज जो फोकल लेंथ होती है कनकेव लेंस की वो नेगेटिव होती है. दैट विल बी नेगेटिव. जब हम इनको फाइंड आउट करेंगे वी विल फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन. Next is 130. When light is incident and metallic surface, the maximum kinetic energy of emitted photoelectrons depend on velocity of incident light, intensity of incident ray, frequency of incident light, the time interval for which लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल. सो अगर कोई मेटल है उसके ऊपर कोई लाइट पड़ रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो इससे फोटो इलेक्ट्रॉन से इमिट होंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? दैट काइनेटिक एनर्जी विल डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट की उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी. नेक्स्ट इज 131. लेंस लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ conservation of charge, mass, momentum, energy. So Lenz's law is consequence of law of conservation of momentum. Law of conservation of energy. Lenz's law is not is the consequence of law of conservation of energy, not the momentum, that is energy. 132 says that during inelastic collision between two bodies, which of the following quantities always remains conserved? कोई inelastic collision हो रहा है, कोई दो bodies हैं जो collide कर रही हैं, inelastic collision हो रहा है, उसमें क्या कंजर्व रहेगा? मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम. बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम. ओनली लीनियर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व ड्यूरिंग द inelastic collision of the two bodies. Next question is 133. How many ions are produced from complex this and this in solution? जब हम इस solution को CONH3 को जब हम Cl2 को हम पानी में डालेंगे तो इससे कितने ions produce होंगे? That will produce 3 ions when placed in the water. Next is a compound contains 4% hydrogen. ठीक है, 4% हाइड्रोजन मिल रहा है, 24% carbon and 71% chlorine. Its molecular mass is 99 grams. Its molecular formula will be. एक तो हमारे पास में डायरेक्ट ऑप्शन है. कई बार क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि लंबी कैलकुलेशंस करने से बचे, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इनका फॉर्मूला, हम इनका मोलिकुलर मास फाइंड आउट कर लेंगे. अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सिर्फ एक ही दो कंपाउंड्स हैं जिसका 99 हमें मिल रहा है तो हम उसको डायरेक्ट मार्क कर देंगे. बट अगर हमें नहीं मिल रहा है देन वी गो फॉर द कैलकुलेशन. कैलकुलेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, इसके कितना परसेंट है, 4% है, और इसका जो हाइड्रोजन 4% है और इसका मोलर मास कितना होता है, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो इसकी कितने परसेंटेज होगी, 2. कार्बन इज़ 24 और इसका जो मास होता है दैट विल बी 12. जब हम इसको डिवाइड करेंगे और इसके दैट विल फाइंड आउट दैट इज 2. बट व्हेन दे हैव सेड दैट दे कार्बन इज इन द कंपाउंड दैट इज वी डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1. व्हेन ऑक्सीजन सेम इज क्लोरीन के साथ में हम इसको डिवाइड करेंगे, 35.5 डिवाइडेड बाई 71 divided by 35.5, that will be 1. Again इसको 2 से डिवाइड करेंगे to maintain the empirical formula, that will come out CH2Cl2, that is Cl1. Again Cl is 1, carbon is 1 and hydrogen is 2. that is जब हम इसको find out करेंगे, इसके साथ में मैच करेंगे, then this one will come out as the option number 3. Next is two spring A and B. Ka is equals to 2 kb are stretched by applying forces of equal magnitude at 4 ends. If the energy stored in A and E, A is E, then B is, दो springs हैं A and दूसरा spring is B.
आर स्ट्रेच्ड बाई अप्लाइंग फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इस पे भी फोर्स F लगा है, इसके ऊपर भी फोर्स F लगा है। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, if the energy stored in A is E, then what is the energy stored in B? Then we will directly put it like as 0.5 into Ka into Xa is equals to 0.5 multiplied by Kb upon into Xb. Kb is equals to Ka by 2, 0.5 into Ka into Xa is equals to 0.5 multiply by Ka by 2 into Xb. इसमें जब हम फॉर्मूला पुट करेंगे we will directly find out Xb, और इससे हम वेलोसिटी जो हमारे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है उसमें डायरेक्टली पुट करके हम फाइंड आउट कर लेंगे कि एनर्जी बी की क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 136. 136 says that a cricket ball of mass 150 grams is moving with a velocity of 12 meter per second and is hit by a ball so that the ball is turned back into velocity of 20 meter. कि कोई क्रिकेट बॉल है, इसके ऊपर बॉल आई, हिट किया और वापस चली गई। वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है, फिर दोबारा वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, और मास है जो क्रिकेट बैट का इज़ 150 ग्राम्स। ठीक है। इफ़ ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बॉल एंड बैट इज दिस, देन impulse for the force is equals to, the impulse for the force will be mv minus mu, 0.15 into v 12 minus 20. When we will calculate it, then we will find out how much force acted for how much seconds. When we multiply it with this, the impulse of that will comes out. Next question is 137. 137 says A CH3 H2 H8 gaseous plus B O2 gas gives out D CO2 gas and plus E H2O liquids. For the above balance equation A and B, डायरेक्ट हमें बैलेंस करना है। C3 यहाँ पे है, C यहाँ पे ओनली प्रेजेंट है, देन वी कैन पुट इट हेयर 3 हो गया। देन वी विल ट्राई टू फर्स्ट बैलेंस आउट ऑक्सीजन। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे बी ऑक्सीजन हमारे पास में 2 है, यहाँ पे कितने हैं, देन वी कैन पुट बी एस 3। अगर ऐसे ही सिमिलरली हम ए को बैलेंस करेंगे, बी को बैलेंस करेंगे, ई को बैलेंस करेंगे। डायरेक्टली हमें सिर्फ एटम्स को बैलेंस आउट करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आई एम लिविंग इट टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 138. इफ इन एन LCR सर्किट कैपेसिटेंस इज चेंज फ्रॉम C to 5C for the resonant frequency to remain unchanged and इंडक्शन शुड बी चेंज फ्रॉम L to the value. कोई LCR का है, उसमें कैपेसिटेंस है जो उसको C से हमने 5C कर दिया है, और रेजोनेंट जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको हमें रखना है कांस्टेंट। वो कांस्टेंट कब रहेगी जब हमारी जो इंडक्टेंस है हम उसको भी चेंज करें। तो L को हम चेंज करेंगे तो हमारी C की वैल्यू चेंज होगी, एंड L एंड C आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। तो LC इज इक्वल्स टू L डैश इंटू C डैश। तो जो हम C और C डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें L डैश की वैल्यू मिल जाएगी। कि कैसे हम इसको चेंज करेंगे तो हमारे जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहे। Next question is 139. Urea is excreted by frog, starfish, land snail or hydra. That urea is excreted by frog. Next question is 140. Which of the following has sp3 dehybridization? किसमें sp3 hybridization present होगा? NH4 positive, SF4, XeF4, XeOF4 that is present in SF4. Next question is 144. 141. A point charge Q is rotating along a circle in a electric field generated by another point charge Q. किसी का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी ने जनरेट किया है Q ने, और उसके अंदर एक पॉइंट चार्ज Q मूव कर रहा है। ये बड़ा Q है, ये स्मॉल Q है। ठीक है। द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द रोटेटिंग चार्ज इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज ever positive, ever negative, 0 may be positive or may be negative, that is 0.
Next question is delta G for the spontaneous process at constant pressure and temperature is, कोई भी रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियसली हमने जो भी रिएक्टेंट्स डालने थे वो डालते ही कब हो जाएगी, when delta G is 0, when delta G is less than 0, when delta G is greater than 0, when delta G is equals to 1. So that reaction will be spontaneous when that is delta G is less than 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 144. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 143. व्हाट विल बी द करेक्ट जीन एक्सप्रेशन पाथवे. करेक्ट जीन एक्सप्रेशन पाथवे क्या होगा, जीन से ट्रांसलेशन हो रहा है एमआरएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है प्रोटीन बन रहा है, जीन से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है एमआरएनए बन रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है प्रोटीन बन रहा है. सो जो जीन होता है, जीन से जब हम एमआरएनए बना रहे होते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन. सो करेक्ट पाथवे विल बी ऑप्शन नंबर 2. 144 says that a solution contains 3 components A, B and C of 0.2 moles each. Then sum of their mole fractions will be. mole fractions का हमें find out करना है. तो mole fractions क्या होगा, सबसे पहले हमें mole fraction of A find out करने पड़ेंगे. mole fraction of A will be 0.2 upon total moles. total moles क्या होंगे 0.2 multiply by 3. that is 1 by 3. दैट इज 0.33. सिमिलर, तीनों का सिमिलर है तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा 0.3 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 145. 145 says that a mass of 5 kg is moving along a circular path of radius 1 meter. If the mass moves with 300 revolutions per minute, the kinetic energy will be. हमें इसकी kinetic energy find out करनी है. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 300 पर मिनट. 60 डिवाइडेड बाई 60, वी विल बी 5 RPS. देन W विल बी 2 पाई न्यू, दैट इज 2 पाई इंटू 5. देन वी विल पुट इनटू काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन हाफ m, मास इज 5 kg, W हमें यहाँ से मिल जाएगा, वेलोसिटी हमें यहाँ से मिल जाएगी, मान लेते हैं x होगा, इसको हम फाइंड आउट करेंगे. देन वी विल फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी फॉर द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 146. ओजेनोलाइसिस इज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली गिव्स प्रोपेन टू ऑल एंड मिथेनल. 2-methyl propene, butene 1-ene, propene, butene 2-ene. That will be given by the ozonolysis of 2-methyl propene. Next question is 147. Which of the following is not true about prokaryotic cells? Prokaryotic cells के बारे में क्या सही नहीं है. Replication of DNA occurs in cytoplasm. Some of them are capable of nitrogen fixation. Plasmids do not occur in prokaryotic cells. Organic molecules can be produced by some of them from inorganic precursors. So क्या incorrect है इसके बारे में, that plasmid do not occurs in the prokaryotic cells. Plasmids only occurs in the prokaryotic cells. 148 question says that if the radius of the earth became 3 times, radius r dash is equals to 3r. ठीक है. देन व्हाट शुड बी द चेंज इन द डेंसिटी सो दैट द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट चेंजेस. कि हमारी जो वी है, हम सिमिलर क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, एक ऐसा ही क्वेश्चन हम रिपीट कर चुके हैं कि हमारी जो पहले हमने जी और आर की वैल्यू फाइंड आउट की थी जब हमारे पास में डेंसिटी कांस्टेंट थी. यहाँ पे क्या कर रखा है कि जी की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, तो डेंसिटी कैसे चेंज होगी. डेंसिटी रिड्यूस टू हाफ, डेंसिटी बिकम्स 1/3, डेंसिटी बिकम्स डबल, डेंसिटी बिकम्स 3 times. सो व्हेन डेंसिटी बिकम्स 1/2 देन जी विल नॉट चेंज. द वैल्यू ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस इज दिस. The percentage tolerance is 5%. What is the color code for the carbon resistance? कि हमें वैल्यू दी हुई है कार्बन रेजिस्टेंस की इतनी दी हुई है, परसेंटेज टॉलरेंस इतनी दी हुई है. व्हाट इज़ द कलर कोड फॉर द सीक्वेंस? येलो ग्रीन ऑरेंज गोल्डन बैंड्स, ग्रीन येलो ऑरेंज गोल्डन बैंड्स, ब्लू ग्रे येलो सिल्वर बैंड्स, ब्लू येलो ऑरेंज सिल्वर बैंड्स. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस विल बी ग्रीन येलो ऑरेंज गोल्डन बैंड्स. Next question is, a metallic rod when placed in a strong magnetic field aligns itself at
राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, की कोई मेटेलिक रोड है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो उसके 90 डिग्री पे खुद को अलाइन कर देती है। देन द नेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल भी डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, कैन बी फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। इन तीनों में इन चारों में से क्या ऑप्शन सही होगा। सो इस वाले में हम अगेन एलिमिनेशन करेंगे। पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक दो हमें अलग ऑप्शंस में भी दिए हुए हैं, सेम ऑप्शन में भी दिए हुए हैं। सो दिस ऑल विल बी इनकरेक्ट। ओनली डायमैग्नेटिक विल बी द नेचर ऑफ द मटेरियल व्हेन इट अलाइंस एट 90 degrees to the magnetic field. So that's about TGT 2020. If you have any queries related to this question paper, then you can put it in the comment section. Thank you so much for being till so much late in this video. If you like the video, please hit the like button, share to your friends as much as possible, and subscribe to my channel.